ایمبولینس حاملہ خواتین کو ڈیلیوری کی سہولت فراہم کرنے میں ناکام، غذائی قلت کا شکار بچوں کی اسکریننگ، ادویات فراہم ہو رہی ہیں، ناحاملہ خواتین میں ہیپاٹائٹس بی سی سمیت دیگر خون کے امراض کے ٹیسٹ۔ ماں بچہ صحت پروگرام میں فیصل آباد کی کارکردگی انتہائی ناقص، پنجاب بھر میں 36ویں نمبر پر آ گیا۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی ماہ فروری کی رپورٹ نے کچا چٹھا کھول دیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار، بتائیے گا جاری کردہ رپورٹ سے متعلق مزید کیا کہا گیا ہے؟ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے ماں بچہ صحت پروگرام سے متعلق ماہ فروری کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور اس میں پنجاب بھر میں فیصل آباد کی اگر بات کی جائے تو فیصل آباد ماں بچہ صحت پروگرام کی جو کارکردگی ہے وہ 36ویں نمبر پر رہی ہے، اور اس ناقص کارکردگی کی جو وجہ ہے، جو جاری کردہ رپورٹ ہے اس کے مطابق جو حاملہ خواتین ہیں ان کی ہیپاٹائٹس بی سی سمیت دیگر خون کے امراض کی جو اسکریننگ ہے وہ مراکز صحت پہ جو ہے نہیں کی جا سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبولینسز حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں تاکہ حاملہ خواتین کو بروقت ڈیلیوری کی سہولیت فراہم کی جا سکے، تو وہ ایمبولینس بھی جو ہے وہ کام کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا جو غذائی قلت کے شکار مریض بچے مراکز صحت میں رپورٹ ہو رہے ہیں تو ان کی نہ تو اسکریننگ کی جا رہی ہے، نہ ہی انہیں ادویات جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے، بلکہ الٹا اس کی بوگس رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہیں اور وہی رپورٹ جو ہے وہ حکومت کو بھجوائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاری کردہ رپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ماں بچہ صحت پروگرام فیصل آباد میں تعینات جو افسران ہیں وہ اپنے من پسند سینٹروں پہ جو ہے وزٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہی سینٹر پہ جو ہے تین افسروں کی جانب سے جو ہے وزٹ کیا گیا ہے، اور اس طرح دیگر جو سینٹرز ہیں ان کے اوپر وزٹ نہیں کیا گیا، اور ساتھ میں جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں سی ای او نے کہ ذمہ داروں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد ڈویژن بھر کے 23 سرکاری کالجز کی عمارتیں خطرناک قرار۔ فیصل آباد اور چنیوٹ کے ساتھ ساتھ ٹوبا ٹیکسنگ کے 5 اور جھنگ کے 4 سرکاری کالجز کی عمارتیں خستہ حال، بحالی کے کام لٹک گئے، کروڑوں روپے کے فنڈز درکار۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ فیصلہ ڈویژن کے 23 سرکاری کالجز کی عمارتیں خطرناک قرار ہیں۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے سروے رپورٹ ڈائریکٹر کالجز فیصل آباد کو ارسال کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد اور چنیوٹ میں 7 کالج، اسی طرح جو ہے وہ ٹوبا ٹیکسنگ میں 5 اور جنگ میں 4 سرکاری کالجز کی عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ فیصل آباد گورنمنٹ اسلامیہ وومن کالج عیدگاہ روڈ کی جو اولڈ بلڈنگ ہے وہ عرصہ دراز سے خطرناک اور خستہ حالی کا شکار ہے، اور اس پر 40 کروڑ سے زائد کی لاگت آنی ہے۔ تاحال فنڈ آنے کے باعث اولڈ جو بلڈنگ ہے وہ سے کلیئر ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کامرس کالج، گورنمنٹ گریجویٹ وومن کالج جڑاوالا روڈ اور گورنمنٹ وومن کالج جو ہے ستیانہ روڈ، اس کی عمارت بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن پیپلز کالونی کی عمارت بھی خستہ حالی کا شکار ہے، اور 4 کروڑ سے زائد کی فنڈ درکار ہیں۔ اسی طرح فیصل آباد، جنگ، ٹوبا اور چنیوٹ کے جو 23 کالجز ہیں ان کی عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہیں، اور یہ تمام تر جو اسکیمیں ہیں ADB اسکیم 2024 اور 25 میں پرپوز بھی کی گئی ہیں، لیکن تاحال 2022 اور 23 کی اسکیموں کے لیے بھی ان اسکیموں پر فنڈز اجرا نہ ہو سکے۔ محکمہ بلڈنگ نے سروے رپورٹ دی ہے۔ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ دوسری جانب LPG گیس کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اوگرا کے نوٹیفیکیشن کے بغیر 30 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ سرکاری ریٹ 257 روپے کلو، جبکہ مارکیٹ میں 303 سے 350 روپے کلو تک فروخت کی جانے لگی۔ آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں، سرکاری ریٹ 257 روپے کلو، جبکہ مارکیٹ میں 330 سے 350 روپے کلو میں فروخت کی جانے لگی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، پہلے تو کبھی اوگرا نوٹیفیکیشن کا انتظار کر لیا جاتا تھا اور اس حساب سے جو قیمتیں ہیں وہ بڑھائی جاتی تھی، کچھ منافع رکھ لیا جاتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں جو منافع خور ہیں، گرہ فروش ہیں، بے لگام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، قیمتیں مسلسل بڑھائی جا رہی ہیں۔ 30 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اوگرا کے نوٹیفیکیشن کے بغیر۔ LGP کی جو گیس ہے اس کی قیمت میں 257 روپے گیس کی قیمت ہے، جو کہ 350-330 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے شہر بھر میں۔ رمضان المبارک میں جو شہری گھریلو صارفین ہیں جو سلنڈر استعمال کرتے ہیں وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو، ساتھ میں جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ LPG ڈسٹریبیوٹر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ جناب بتائیے گا، اوگرا کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، قیمت مسلسل بڑھائی جا رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملہ انجا جی کہ گیس پچھو بلیک ہو رہی ہے، کیونکہ چند عناصر نے جڑے اتلی سطح دے اپنے یہ منمانی کرتے ہیں، پروگرام بنا دیں گیس بلیک کرتے روک دیں نے، من مرضی ریٹ گورنمنٹ کا ریٹ 257 روپیے، تو سانوں کل تک پرسوں 300 سی، کل 330 ہو گئی ہے، 350 تک فروخت ہو رہی ہے۔
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਡਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ तो रोटी बड़ी इंतजामिया कोई काम करती हुई दिखाई नहीं दे रहे। शहरी मेरे साथ मौजूद है। आप बताइएगा, गैस की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, किन परेशानियों के साथ? ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ 330 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਗੈਸ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। बिल्कुल शहरी परेशान है। सहरो इफ्तार का एहतमाम भी करना मुश्किल हो चुका है क्योंकि सिलेंडर जो गैस है वो काफी महंगी हो रही है और जो शहरी हैं डिस्ट्रीब्यूट। ओगरा के नोटिफिकेशन के बगैर गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एलपीजी की कीमत में इजाफे पर टोबा टेक सिंह के शहरी भी बिलबिला उठे। शहरियों की जानिब से एलपीजी कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत से गैस की कीमत में जालिमाना इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा मजीद क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से महंगाई के सताए शहरियों पर महंगाई के मज़ीद ज़ालिमाना वार जारी हैं। गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो एलपीजी जो है वो उसकी कीमत में जो है वो 30 रुपये का बड़ा इजाफा कर दिया गया, जिस पर टोबा टेक सिंह के शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों को ये कहना है कि माह रमज़ान मुबारक में रिलीफ तो गवर्नमेंट ना दे सकी, लेकिन तकलीफ जो है वो ज़रूर पहुँचा दी गई है। शहरी मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। अब बताइए, गैस की कीमत में जो है वो इजाफा हो गया, किन परेशानियों का सामना? जी ਤੁਸੀਂ ਐਲਪੀਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਗੇ 350 400 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ 30 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਐਲਪੀ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਐਲਪੀ ਦਿਓ। ਆ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਧਾਏ ਆ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੈਸ ਦੇ 7-7 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਰੇਟ ਸੀ ਗੈਸ ਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਰੀਬ। अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गुर्बत में पिसी अवाम पर हुकूमत का एक और कारीवार। एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा कर दिया गया। एलपीजी 305 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। रिक्शा ड्राइवर्स हुकूमती पॉलिसियों पर बरस पड़े। मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुर्बत में पिसी अवाम पर हुकूमत का एक और वार। एलपीजी की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। जंग शहर में एलपीजी की कीमतों में 60 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 245 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली एलपीजी 305 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। मेरे साथ सार्फिन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इस कदर जो है वो इजाफा हो जाना, किस कदर मुश्किलात बढ़ जाएंगी? जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है जी। तकरीबन जो है 60-70 रुपये ज़्यादा इजाफा इन्होंने 1-2 दिन में कर दिया है। हम ये कहते हैं कि ये कम किया जाए। हुकूमत से दरख्वास्त है जितना भी कम रेट करवा सके। ये रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है, रोज़ ब रोज़ जो है ना महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस बढ़ा दी इन्होंने, एलपी हम चूल्हे में डलवाने आए हैं गैस में। कल 270 था, आज 300 बता रहे हैं। बड़े परेशान हैं, घर तो तंग ही आए। बच्चे रोज़ की तो पूरी कर सकी थी, मेहरबानी की तो गैस घट जाएगी। जी बिल्कुल, सार्फिन का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो होश के नाखुन ले। महंगाई अगर कंट्रोल नहीं कर सकती तो उसको बढ़ाए नहीं, कम अज़ कम उसी रेट पर जो अशिया हैं वो फराम की जाए। मज़ीद महंगाई ना की जाए ताकि गुर्बत में पिसी अवाम जो है वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने का जो है वो। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग में कीमतें कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कैंप का कयाम। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और टीमें मॉनिटरिंग के लिए बाजार में मौजूद रहेंगी। रमजानुल मुबारक में 49 गिरां फरोश पकड़े गए। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, एक तरफ गिरां फरोश जो हैं वो मुतहर्रक हैं मुनाफाखोरी के लिए, तो दूसरी जानब इंतज़ामिया की जानब से भी जो है वो भरपूर कार्रवाई के लिए जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुतहर्रक हैं। ज़िला भर में 11 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अयूब चौक में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MOR मोहम्मद खालिद, उनसे बात भी कर। खालिद साहब, ये बताइएगा, 11 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कैंप कायम हैं, इन कैंप्स के कायम करने का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा जो हैं और उनके VN के मुताबिक और जनाब डिप्टी कमिश्नर जंग के हुक्म के मुताबिक ये अयूब चौक में हमारा प्राइस कंट्रोल कैंप बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारे साथ बाज़ार हैं, यहाँ पे लोग ख़रीदारी करते हैं।
अगर कोई रेट का कोई मसला हो तो वो आके हमें बताते हैं जी कि ये देखें लिस्ट पे ये रेट है और ये दुकानदार ये रेट दे रहा है, तो हम उसी वक्त फौरी एक्शन लेते हैं, उस बंदे को बुलाते हैं, उसको जुर्माना करते हैं। अगर वो FIR के काबिल तो FIR देते हैं। तो वो जो शिकायत है अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से ये कैंप बना है, ये सामने बाजार लगा हुआ है, दुकानें लगी हुई हैं, दुकानों के ऊपर हमने ये गवर्नमेंट सार्फिन यहाँ पे आ रहे हैं, शिकायत कर भी रहे हैं और आपकी जानिब से कार्रवाई भी की जा रही है? सर बिल्कुल आ रहे हैं। ये हमारा ये देखिए हमारे पास ये शिकायत रजिस्टर है, इसको हम शिकायत दर्ज करते हैं। तो पहले 2 दिन तो काफ़ी शिकायतें आती रही कि ये जी लोग बड़ी महंगाई करके बैठे हैं, ये वो। जब से ये हमने कार्ड लगवाए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई कल कंप्लेंट है ना कोई अब कंप्लेंट आई है। मजमूई तौर पर रमजान मुबारक। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्की बरामदात के सबसे बड़े शोबा टेक्सटाइल की बरामदात कम। टेक्सटाइल बरामदात में कमी से बड़े सेक्टर नेटवियर में भी कमी सामने आई है। जुलाई था फरवरी के 8 माह की रिपोर्ट के मुताबिक नेटवियर में खसारा रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट करें, जुलाई था फरवरी के 8 माह की रिपोर्ट के मुताबिक नेटवियर में खसारा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्की बरामदात के सबसे बड़े शोबा टेक्सटाइल की बरामदात कम हुई हैं। टेक्सटाइल बरामदात में कमी से बड़े सेक्टर नेटवियर में कमी सामने आई है। जुलाई था फरवरी के 8 माह की रिपोर्ट के मुताबिक नेटवियर में खसारा रिकॉर्ड किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल। बिल्कुल, मुल्की बरामदात का सबसे बड़ा शोबा है जिसकी बरामदात में कमी की जो सिलसिला वो तो जारी था, लेकिन उसमें बड़ी वजह जो है वो सिटी 41 ने सामने लेके आया है कि नेटवेयर जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो कि टेक्सटाइल शोबे का सबसे बड़ा सेक्टर, उसमें मजबूरी तौर पर कमी वाक़ हो रही है। टेक्सटाइल शोबा गुज़श्ता साल 8 महीनों में बरामदात $11,218 मिलियन थी, जबकि रवा माली साल में 8 महीनों की टेक्सटाइल बरामदात $11,48 मिलियन थी। नेटवेयर शोबा टेक्सटाइल के मजबूरी विजन में $3,78 मिलियन का हिस्सा था, जो कि कम होकर $2,90 मिलियन रह गया। और ये यकीन तौर पर एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल बरामदात जो 60% जायद की तरक्की, उसका सबसे बड़ा हजम रखने वाला जो सेक्टर है वो खसारे में जा रहा है। जी बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खुद साख्ता महंगाई के हवाले से गुर्बत में पिसी अवाम पर हुकूमत का एक और कारीवार। LPG की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा कर दिया गया। जंग में भी सार्फिन ने इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। आपको अपडेट करें, जंग में भी सार्फिन ने इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। LPG की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा, 30 रुपए का बड़ा इजाफा LPG की कीमतों में किया गया है। मजीद क्या कहना है शहरियों का जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस। बिल्कुल, LPG की कीमतों में एक रोज़ में जो है वो 30 से 50 रुपए का इजाफा जो है वो किया गया है, जिसके बाद सार्फिन शदीद हद तक परेशान है। इस हवाले से मेरे साथ जाहिद परवेज़ लाला मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, इस हवाले से कितनी मुश्किलात हैं सार्फिन? मैं जंग में सार्फिन का नुमाइंदा हूँ और मेरे पास अक्सर लोग शिकायतें लेकर आते हैं। ऊपर से माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना जो शुरू है, इसमें महंगाई ने आम आदमी का जीना दुबर कर दिया है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। हालांकि इस महीने में हुकूमत को चाहिए कि ऐसे कदम उठाएं कि जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले, लेकिन रात ये खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि LPG की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया कि 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक, और फी किलो 330 रुपए यहाँ LPG जंग में बिक रहा है। ये LPG आम आदमी जिनके हाँ सुई गैस नहीं लगा हुआ, उनके लिए ये सहूलत बहुत मुयस्सर है। सुई गैस के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं, इतने रेट बढ़ा दिए हैं कि अब LPG इस्तेमाल करने के लिए लोगों ने LPG के सिलेंडर घर रख लिया और LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। और रात लोगों को कोई ये हुकूमत के कदम की खुशी नहीं हुई। हक तो ये था कि इसको 250 पर या 270 पर लाते, लेकिन ये 330 से लेकर 350 तक इसका रेट बढ़ा दिया गया। हम इस कदम की बहुत भरपूर मुखालफत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि वो LPG की रेगुलर अथॉरिटी ओगरा को हदायत दें कि इनकी कीमतें कम। का कहना है कि यकीनी तौर पर जो कीमतें कम होने के हवाले से इक़दाम करने हैं। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा में सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए मुश्किल हो गया।
आटा पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन की तवील कतारें लग गई। खुले आसमान तले रोजादारों के लिए तवील इंतजार करना मुश्किल हो गया। आपको अपडेट करें, खुले आसमान तले रोजादारों के लिए तवील इंतजार करना मुश्किल हो गया। आटा पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन की तवील कतारें लग गई। टोबा में सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए मुश्किल तरीन हो गया। आटा पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन की तवील कतारें लग गई। मजीद तफसीलात बताने के लिए मुबशिर हसन नकवी ने हमें टोबा से ज्वाइन किया है। फैसलाबाद से खिलजा ने और शाहजीवना से शहजाद हसाम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोबा से, जहां पे मुबशिर हसन नकवी मौजूद है। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में रोटेलिटी स्टोर्स पर बड़ी तादाद में मर्द खवातीन मौजूद हैं जिनको आटे के हसूल के लिए खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 640 रुपए का बैग जो है वो 10 किलोग्राम का रोटेलिटी स्टोर्स पर मिल रहा है। इजाफी काउंटर्स लगाए गए, उसके बावजूद भी मर्द खवातीन की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही। टोबा टेक्सिंग के 51 रोटेलिटी स्टोर्स हैं जहाँ पर रोजाना 6000 से ज्यादा आटे के थैले जो है भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन ये आटे के थैले भी कम नजर होते आ रहे हैं क्योंकि बड़ी तादाद में खवातीन और मर्द जो है वो रोजे की हालत में यहाँ पर मौजूद हैं और मुश्किलात का शिकार है। उनका ये कहना है कि सुबह से ही आटे के हसूल के लिए तवील कतारों में लगे हैं, लेकिन आटा उनको नहीं मिलता है, जिसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि अक्सर जो लोग ऐसे हैं जिनका बेनद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज नहीं है, अब जब वो ID कार्ड को चेक करवाते हैं तो बिलाशुबा इससे जो है उनका भी वक्त ज़ाया होता है और दीगर जो शहरी हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम रोजे की हालत में ये लोग परेशान हैं क्योंकि अब मौसम भी तब्दील होने लगा है, दर्जा हरारत में भी इजाफा हो रहा है और इन तमाम तर अफराद को खुले आसमान तले तवील इंतजार करना पड़ रहा है। रोटेलिटी स्टोर्स कारपोरेशन का ये कहना है कि ना सिर्फ रोटेलिटी स्टोर्स बल्कि जो मोबाइल वैन बनाई गई हैं वो भी मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आटे को फरोख्त कर रही हैं। इसके बावजूद भी लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ शोरकोट रोड पर रोटेलिटी स्टोर्स में, जहाँ पर बड़ी तादाद में मर्दों खवातीन मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत इस हवाले से कोई बेहतर पॉलिसी मुरतब करे ताकि इनको बासानी आटा मिल सके। और दूसरी जानिब रोटेलिटी स्टोर्स पर जो बेनद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड लोग हैं उनका ये कहना है कि उनको भी सिर्फ 1 किलो जो है वो घी दिया जा रहा है, 1 किलो चीनी दी जा रही है और दीगर अशिया के लिए भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी मुबशिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं शाहजीवना का, जहां यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा नायाब, शहरी परेशान। कहते हैं महंगाई के बायस ओपन मार्केट से आटा नहीं खरीद सकते। हुकूमत से आटे की वाफिर फराहमी का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करें, शाहजीवना पर भी यूटिलिटी स्टोर्स में आटा नायाब हो गया। हुकूमत से आटे की वाफिर फराहमी का मुतालबा कर दिया गया है। कहते हैं महंगाई के बायस ओपन मार्केट से आटा नहीं खरीद सकते। हुकूमत वाफिर मिकदार में आटा फराहम करे। मजीद क्या तफसीलात जानते शहजाद हसाम से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, शाहजीवना के यूटिलिटी स्टोर पर सप्लाई आटा जो है उसकी फराहमी वो 5 दिन हो चुके अभी तक मुहैया नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना है। जो सप्लाई आटा है वो यूटिलिटी स्टोर पर 650 रुपये में 10 किलो का थैला मुहैया के जाके ओपन मार्केट में वो 1400 से 1500 रुपये में फरोख्त है, जिसकी वजह से शहरी को आटा बाहर से खरीदना काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ शहरी मजीद उनसे बात करें। जी बताइए कि सर यूटिलिटी स्टोर पर आटा मुहैया नहीं किया जाए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी फरियाद को हाईलाइट किया है। आटे की बात की जाए तो आटा हमारी बेसिक ज़रूरत है और देखें तो इस जो इनकम है, इनकम दिन को 700-800 डेली इनकम है और बाहर से आटा हमें मिलता है 1400 रुपए में और यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता मिल सकता है। अगर हम बाहर से और यूटिलिटी स्टोर पर अफसोस ये है कि हमें फराहम नहीं किया जाता है, 4-5 दिन हमें नहीं मिलता है। और अगर हम बाहर से लें तो हम सब्जी लें, आटा लें, क्या क्या चीज़ लें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम वज़ीर आला दूसरा वफाकी हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी फरियाद सुनी जाए और हमें टाइम पर आटा मुहैया किया जाए। अजमेर शहरी का कहना है कि महंगाई पहले बहुत ज्यादा। शाहजीवना से शहजाद हसाम हमारे साथ मौजूद थे। अब रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहां पे मॉडल बाजार में रिलीफ पर अशिया 1 किलो से ज्यादा नहीं मिल रही। खवातीन कहती हैं 25% तक रिलीफ दिया जा रहा है, अशिया की मिकदार बहुत कम मिलती है। हुकूमत से रिलीफ के साथ अशिया की मिकदार बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। खिलजा ने फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी खिलजा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मॉडल बाजार में सस्ता रमज़ान बाजार तो लग गया, जहाँ पे अगर बात कीजिए रिलीफ तो फ्राहम किया जा रहा है 25%, लेकिन अशिया जो है बहुत कम मिकदार में मिल रही हैं। 1 किलो से ज़ायद जो है वो कोई भी अशिया जो है यहाँ पर ख़रीदारी जो है उसकी नहीं की जा रही।
ख़वातीन का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में रोज़ बरोज़ जो है वो आकर यहाँ पर घंटों इंतज़ार करके चीज़ ख़रीदना जो है वो मुश्किल हो जाता है। घर में आपने इबादत करनी होती है। खातून मेरे साथ मौजूद है, इनसे हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से आप यहाँ पर अशिया ख़रीदने के लिए आई हैं। अशिया आपको कितनी मिल रही है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हमें इधर अस्सलाम वालेकुम, हमें इधर अशिया तो मिल रही है लेकिन बाहर से मुनासिब मिल रही है, लेकिन 1 किलो मिल रही है। इनको चाहिए कि हमें ज़्यादा दें, तो अगर देनी है तो ज़्यादा दें, वरना हमारे घरों में पहुँचाएँ। जिसकी तो 50,000 से कम इनकम है उनको चाहिए कि उनकी बेशक घर में ये राशन पहुँचना चाहिए, और हमें 1 किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे। 50 रुपये के तो आलू हुए इन्होंने। जिनकी फैमिली है वो क्या करेंगी? रोज़ा भी करना है, सैरी भी करनी है, इफ्तारी भी करनी है, उसमें क्या करेंगे? हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लाइनों में लगना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, एक और खातून मेरे साथ मौजूद है। जी क्या कहेंगी आप? हाँ जी क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, इन्हें ज़्यादा देना चाहिए और ज़्यादा देंगे तो अपनी इबादत करें घर में बैठ के, बस ठीक। आज जी बिल्कुल मेरे साथ कुछ और खवातीन जो मौजूद हैं, इनसे सवाल से मजीद जानते हैं। आज जी बताओ किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है आपको, और कितनी अशिया जो यहाँ पे मिल रही है? मुश्किलात यही है कि जब लोग इतनी इतनी दूर से आते हैं यहाँ पे ये चीज़ें लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे इनको क्वांटिटी बहुत कम मिल रही है। इनको क्वांटिटी ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो औरतें घरों से निकल नहीं सकती यहाँ पे चीज़ें लेने के लिए। जी बिल्कुल, खवातीन का कहना है कि रोज़ बरोज़ जो है वो घरों से आना जो है मुश्किल। रोज़ जो इतना फ्यूल लगा के शहर से इतना दूर किनारे पर तवील इंतजार के बाद भी 1 किलो से ज्यादा अशिया नहीं मिलती। फैसलाबाद से खिलजा, टोबरटेक सिंह से मुबशिर हसन नकवी और शाह जीवना से शहजाद हसाम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कमालिया में MNA रियाज फित्याना मोहल्ला फाजिल दीवान पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा की कुछ रोज कबल घर की खस्ता हाल छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक होने वालों के वर्सा से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान। कमालिया में MNA रियाज फतियाना की आज मोहल्ला फाजल दीवान में आमद हुई है, जहां पर मुख्तलिफ मुकामात पर उन्होंने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया भी अदा किया है और इयादत के साथ साथ जितने भी यहां पर फातह ख्वानी भी किए। बात भी करेंगे। फतियाना साहब बताइएगा, आपकी आज अपने हल्के में आमद हुई है, क्या कहेंगे हल्का की आवाम के लिए? जी, आज मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी बॉडीज़ के लोग अहदेदारान साथ हैं, और आज कुछ दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया है जिन्होंने बहुत मेहनत की है। काज़मी साहब जिसमें से एक है मेरे साथ खड़े हैं, और कोई फातह खानियाँ थीं, कोई लोगों से मुलाकातें थीं। एक यहाँ पे मकान गिर गया था, 3 अफराद उसमें हलाक हुए। गुर्बत की वजह से वो छत की तामीर मुरम्मत नहीं कर सके, तो उनकी ताज़ियत भी मैंने की और मौका विज़िट भी किया। उनकी मदद के लिए भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल आज इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ और बहुत खुशी हुई कि मैं अपने लोगों के दरमियान हूँ। जैसे कि आपने बात सुनी कि यहाँ पर कुछ ही दिन पहले रिजवान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बहरिया फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ रजा अवान की खसूसी शिरकत। तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। बहरिया फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से आज सालाना तकरीब तकसीम इनामात का अहतमाम किया गया ताकि साल भर मेहनत करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की जा सके। इस हवाले से ADC काशिफ रजा अवान भी यहाँ पर खुसूसी तौर पर उन्होंने शिरकत की और बच्चों में इनामात तकसीम किए। प्रिंसिपल गुलशन शाहिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कितना ज़रूरी है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उनकी अप्रिसिएशन की जाए। आज बच्चों को इनामात दिए गए, यकीनी तौर पर अगले सालों में वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। कितना ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटीज़ करना, इवेंट अरेंज करना? देखिए, स्कूल जो होता है बुनियादी तौर पर वो बच्चों की फाउंडेशन बनाता है। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली स्कूल से जब निकल के जाएंगे बच्चे तो वो कौम और मुल्क के लिए बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर बनेंगे। तो हम ये स्टार्ट करते हैं हर साल ही, ये हमारा 15th एनुअल डे है, इसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुई। और जैसे आपने पेरेंट्स से सुना कि बहरिया फाउंडेशन कंपैरेटिवली बड़ा एक्सक्लूसिव काम कर रहा है कैरेक्टर बिल्डिंग पे, नेशनलिज्म पे और इस्लाम पे। तो ये हमारे 3 मोटोज़ हैं और इन पे हम बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स को तो लेके चलते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे वी फोकस अ लॉट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पूरी जनरेशन जो है इस वक्त पाकिस्तान में डॉक्टर्स के तौर पे, इंजीनियर्स के तौर पे, पायलट्स के तौर पे और बैंकर्स के तौर पे, लॉयर्स के तौर पे काम कर रही है। एंड वी आर रियली ऑल ऑफ माई टीम जो है दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, दे आर ऑल क्वालिफाइड एंड स्किल्ड इन देयर फील्ड। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल परफॉर्मिंग वेरी वेल और अभी आपने रिजल्ट्स देख लिए और इंशाल्लाह वी विल कीप ऑन डूइंग ऑल दीज थिंग्स इंशाल्लाह एवर, जब तक हम मौजूद। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चनाब कॉलेज शोरकोट में सालाना तकरीब तकसीम इनामात, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट का तकरीब में खसूसी खिताब। मजीद तफसीलात जानते हैं नवीद शाहिद से। जी नवीद।
जी, यहाँ चनाब कॉलेज शोरकोट में आज सालाना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी मुनक्कद की जा रही है। यहाँ पे चीफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज़ अहमद मुग़ल साहब। उनसे बात करते हैं कि बच्चों के अचीवमेंट के हवाले से वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हमारे शोरकोट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। एक तो एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है हमारे जनाब कॉलेज शोरकोट में। तो सबसे पहले मैं तमाम टीचर्स को जिन्होंने सारा साल बहुत मेहनत की, उन पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चों के लिए मेहनत की और उन बच्चों ने माशाल्लाह पोजीशंस हासिल की, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ-साथ हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट दिन इसलिए भी है कि यहाँ पे आज के दिन हमने दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स की हैं। एक तो हमारी फ़ाइन आर्ट्स की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं और दूसरा एलाइड हेल्थ साइंसेज़ की इंटरमीडिएट की क्लासेस ये पहली दफ़ा यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। तो ये हमारे शोरकोट के लिए मैं समझता हूँ एक बड़े फ़ख्र की बात है। तो इंशाअल्लाह जिस तरह पहले ये कामयाबियाँ हम समेट रहे हैं, तो आने वाले नवीद शाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।